Okay. Hi, guys. Welcome to Wholesome Conversations with Holistic Edu. And today we have with us Manish Freeman. And Manish Freeman is this very unique and amazing individual who I heard of just recently. He's like this amazing combination of Munna Bhai and Phunsak Wangru. He's an engineer by profession, but someone who just enjoys playing games. And he creates not just normal games, he creates collaborative games, non-competitive games and circular dances. And he believes a lot in the strength of community, of getting adults and children together and getting them to play together. So it gives me a lot of pleasure to call on stage, on stage, online stage, Manish Freeman. So Manish, nice Hi, to see you. Pooja. Yeah, same. Excited. Wonderful. So बहुत ही कुछ अलग कर रहे हो आप. Like your name is also unique, Manish Freeman, and then you organize games. So कुछ बताइए, like what is Gameathon about? What is Manish Freeman all about? Like what is this Freeman? So free man, actually, if I would say, कि I really wanted to be free all the time, and so that's what I wanted to be. So I thought like, what name I can have. So I really found free man interesting, and also I wanted to be free from all these system now which we society have normally, जैसे caste system है और Hmm. money system है, education system है जो बहुत है, और बहुत सारी जो मैम like we are bounded all the time. So I never Hmm. wanted myself to be bound in those systems. तो मैंने कहा इससे फ्री रहना है तो खुद को फ्री मैन करना ही पड़ेगा. एंड आई वांटेड टू कीप माय नेम कि जिसको मैं मतलब रीच करता रहूँ, अप्रोच करता रहूँ. इफ और अगर if I'm not that, then I can recheck, okay, मैं मनीष फ्रीमैन अभी हूँ या नहीं हूँ current state में. So yeah, Ah, to be myself Manish Freeman. And सही. yeah. And if I'll talk about Gameathon, so Gameathon is like you must have heard cyclothon, marathon. तो मैंने सोचा कि similar like why we not have Gameathon, so where we play lots of games साथ में एक साथ, so one by one. So in Gameathon, what do we do? Like we just come together and we play lots of games. Like in 1 or 2 3 hours, like we just play 30, 40, 50 games all together, and when non-stop, like you can say marathon of games. So that's we call Gameathon. Oh, so there's no time limit, is it? It can go on till whatever time. Yeah, it depends. So how much time people have and how much interested they are. So it depends on that. My Oh. energy is always like I'm on reflective mode. So the more people Okay. want to play, the more I go crazy actually. So it's like that. Oh, Yeah. wow. So किस type के games है? Are these like offline games, online games? So I started with offline only because पहले तो Mm-hmm. online का कभी सोचा ही नहीं था, and so I wanted to be in people, be with people actually. So I Hmm. started with that, or so it was long journey of like 8 9 years. And when this pandemic came, तो उसमें अब like you don't have option because my whole work was around कि भाई people come together, they Hmm. hold each other hands और साथ में मिलें and साथ में आए खेलें और energy share करें. बट इन दिस पेंडेमिक लाइक सब कुछ रिवर्स हो गया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूर रहो, टच नहीं करना, साथ में नहीं आना, ग्रुप में एक साथ नहीं आना. तो देन आई एक्सप्लोर दीज ऑनलाइन ऑनलाइन गेम्स कि भाई हम जूम पे या किस टाइप पे या किसी भी टीम पे कैसे हम इन गेम्स को खेल सके. एंड देन आई कुड एक्सप्लोर फ्यू गेम्स जो साथ में खेल सकते हैं. तो लाइक या सो नाउ ऑनलाइन गेम इज आल्सो हैपनिंग. Oh, that's wonderful. तो कैसे type के games होते हैं ये? Like, is it any age group? Like आप बच्चों के लिए भी करते हो? You do it for adults also. Is there any age limit? No younger than this, no older than this? कुछ नहीं. So there is no age bar yet. कोई भी ऐसा एज बार नहीं है. तो आई इनवाइट Okay. पीपल टू बी फ्रॉम ऑल एजेस बिकॉज जितना डाइवर्स ग्रुप रहता है, so उतना एक्सपोजर भी ज्यादा है एक दूसरे से सीखने का. मतलब जब खेल रहे हैं साथ में और एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत Uh-huh. इंटरेस्टिंग रहता है. साथ में सब एज के लोग साथ में आते हैं, एंड सो वो Oh, स्पेस एक रहता रहता है. या oh, wonderful. So within the same group, you have like maybe a 10-year-old and a 60-year-old playing the same game या together. हाँ. Oh, सो that's fun. आई हैव डन सेशन जिसके अंदर मतलब 6 7 मतलब 4 5 6 ईयर ओल्ड से लेके लाइक 60 70 साथ में खेल रहे हैं. So it's like that. Oh, superb. Can you think of some game now? अभी हमारी viewers को दिखाने के लिए, is there like any छोटू game that you can think of that the two of us can play? हाँ मतलब अभी खेल तो सकते हैं.
So because as we are online तो थोड़ी limitations तो है because जब हम साथ में वैसे energy में रहते हैं तो physically we are active और साथ में आके और and we also like in group, तो अभी हम group में तो नहीं है तो physical वाला portion थोड़ा सा कम हो जाता है और second तो mind वाला option ज़्यादा चलता है इस time पे, तो मतलब we can play mind game type जिसमें थोड़ा mind use कर रहे हैं और simple सा और थोड़ा बहुत physical actions. So what we can do, so I play this game offline also with people, so they can play at home अगर they want to try. And you can play in a group like 20 people, 25 people or something like that. So so this game designed actually when I was in Ahmedabad और बहुत ही simple game था and I was working with kids, तो उनके साथ कर रहा था. तो what happened कि तो इसकी स्टोरी बाद बताऊंगा, पहले इसको खेलते हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा. So what you need to do, so we both are in group and just imagine कि we are in a team now and we need to count till 30. Okay, so it will be like 1 by 1, then I will say 2, 3, 4 like that. Okay, and now the game is whenever 0 will come, so we will not say 0, we will say O instead of saying 0. O. Okay, all right. O. And whenever 1 will come, you just need to clap. Okay. So 1 पे clap हो गया, 0 पे O, and on 7 you need to do this like snake or okay. So this is 7. Okay. So imagine like whenever like so if 10 will come, how you will say 10? Oh. No, sorry. No. Oh. Yeah. Okay. So so that's the game, and we need to reach till 30 in one go. If we'll do the mistake, we'll restart again. Okay, so that's simple game. Chalo, let's do. So I'm starting. I'll start with clap. Once I start करेंगे. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. No. Very nice. Oh. Okay. So normal number will be normal. So 2 is 2. 2 पे 2 clap करने की जरूरत all right. Okay. Yeah, so Okay, only मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया. 0 is O and 7 is A. Okay. चलो, so you start now again. एक बार और restart करते हैं. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9. Oh. 1. Wow, very nice. और one, you will not. 1 पे 1 बोलना ही नहीं है ना, just. Okay, I think we have got how this game goes. ये शायद अगले 1 घंटे तक ना चला जाए. हाँ, नहीं एक बार और ट्राई करते हैं. I think हो जाएगा. बहुत ही सिंपल गेम है. You just need to think आराम से, मतलब ऐसा जल्दबाजी तो है ही नहीं, और we'll finish it. Okay. तो चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ. What is it? 1. Okay, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9. 2, oh. 2. 22. 23. 24. 25. 26. 2. 28. 29. 3, oh. ये हो गया. Oh, thank God. हाँ, मुझे एकदम ऐसे लग रहा था ना कि ये होगा या नहीं होगा. I was like, यार और एक round नहीं. But I this know. was a really fun game. So what age group would this be for? So this game, like anybody can play. Those who are, मतलब those who can count actually. So I'll tell you how this game originated. ये हुआ कैसे?
सो आई वाज इन अ स्कूल अहमदाबाद में, छोटे से बच्चे सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, सो दे वर सेइंग कि सर हम ना आपको 1 to 100 लिख के दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने लिख दिया, जल्दी जल्दी लिख दिया और सब, और मेरे से वेरी गुड मैंने कहा ठीक है। सो इट वाज 2000 मतलब 12 की बात बता रहा हूँ मैं। और फिर कुछ बच्चे आए कि सर वी विल काउंट, आपको सुनाते हैं गिनती एक से। वो अहमदाबाद में थे तो ए बे त्रन चार करके बता रहे थे। तो 100 तक। मैंने कहा ये भी सही है। अब मुझे अप्रिशिएट ही करना था हर वक्त। मैंने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया कर रहे हो। तो मैंने उनसे, फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, बट तुम मैं नंबर बोलता हूँ, तुम लिख के दिखाओ। तो मैंने उन्हें जैसे बोला कि भाई 69, जैसे 69 69। तो वो सोच रहे हैं। मैंने कहा, फिर मैंने कहा अच्छा मतलब ये कैसे, इनको पूरा 1 से कैसे जाना पड़ता है वहां तक। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो एक और ट्रिक देखा। मैंने कहा वो नंबर देखा, तो मैंने उन्हें बोला कि जैसे 81 तो 81, तो वापस है 1 2 3 4 5, वो ऐसे काउंट कर रहे हैं। तो मैंने देखा यार इनका तो सिस्टम ही अपलोड वैसे हो गया है, उन्होंने सब कुछ क्रैम रट रखा है एकदम। और तो इनका सिस्टम कोलैप्स होता है जिधर जब सीधा बीच में कोई नंबर, तो उनके दिमाग में इमेज ही नहीं बन रही। तो जब वो नंबर बोल रहे हैं, मैं कोई नंबर बोल रहा हूँ, तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, मतलब उनकी इमेज दिमाग में क्लियर ही नहीं हो रही कि भाई 79 इज लाइक मतलब 76, 79 जैसे जो 79 है, या इस तरीके से 81 81 है। तो उनके दिमाग में इमेज क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा यार इस गेम ये कैसे हो। तो मैं तब ये गेम ऐसे डिजाइन हुआ, बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग दिस गेम यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ द नंबर कि भाई 17 इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 17 नहीं है, 17 इज जस्ट 1 and 7। जब 21 आ रहा है 2 1 इज नॉट 1 2 3 4 21। तो ये काफी ब्रेक कर पाया, मतलब सिंपल सा गेम, बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों ने मतलब उस पर देखना स्टार्ट किया। एंड देन दे वर हाई कि भाई अब इसको खेलना है, मतलब जितना लंबा खेल सकते हैं खेलते रहते हैं। मैं कुछ मॉडिफिकेशन मतलब ग्रुप वाइज, और जब मैं अलग अलग जगह सेशंस करता हूँ तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन डालने लग गया कि 30 तक काउंट करते हैं, 1 गो में काउंट करते हैं। देन इट बिकम्स लाइक अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। तब वो when you're coming together ग्रुप में वो साथ में, तो कैसे 1 गो में एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड करके ये सब चीजें कर सकते हैं। और मतलब जब लर्निंग्स की भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, मतलब एक छोटे से गेम में मतलब यू कैन जस्ट लर्न पूरा लाइफ सीख सकते हैं। तो वो बहुत है। तो या और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहते हैं कोई भी गेम के आप खेलते हैं तो, अलग अलग लर्निंग, ग्रुप के वाइज, लोगों के वाइज, लोगों की एनर्जी के साथ, गलतियां जब होती है उसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स रहते हैं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड इन गेम। So, इसी game को you would also modify it for an older audience, like same game you would take it even to like 20 to 30s and yes, wonderful. And so 20 to 30 you are talking about age group ना? Yeah, I'm talking about the age group. ये वाला जो गेम है, this game we have played like, मतलब मैंने मतलब प्रिंसिपल्स के साथ में, स्कूल टीचर्स के साथ में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर I have used this game like anything, और this is the like one of the best game। मतलब तो मैंने अभी जस्ट मैंने शेयर किया। हाँ, बिकॉज इट सीम्स वेरी सिंपल कि भाई काउंटिंग वाला है, नंबर वाला है, बट व्हेन यू डू दिस इन ग्रुप तो बहुत सारे इनसाइट्स रहते हैं कि लोग, क्योंकि लोग अपने बिहेवियर में आ जाते हैं। सो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। सो व्हेन यू विल प्ले दिस गेम विद ग्रुप नो, तो ग्रुप में क्या होगा, तब यू विल डू द मिस्टेक, सब लोग ठीक करने आ जाएंगे, पीपल विल करेक्ट यू, अरे ऐसे करना है, अरे ऐसे करना है, अरे ऐसे करना है, कैसे होता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर में ऐसा होता है कि कुछ लोग तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनको इतना जजमेंट फील होता है, और कुछ लोगों को प्रेशर होता है कि भाई मेरे से नहीं होगा ये, सिस्टम कोलैप्स। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रहता है, और नॉर्मली भी ये भी होता है, शायद क्लासेस में भी यही होता है, स्कूल्स में भी बहुत जगह ये हो जाता है, जिसके अंदर हम इतना पॉइंट करते हैं कभी लोगों को, हम सब लोग ना जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो सब लोग करेक्ट करने पहुंच जाते हैं। देन कोई कनेक्ट तो करता है कि भाई प्रॉब्लम हुई कहाँ से, करेक्ट कर देते हैं, सब लोग करेक्ट कर देते हैं। तो बहुत ही मतलब छोटा सा गेम है, बट इट कैन लाइक टीच यू एनीथिंग, मतलब बहुत लाइफ का जर्नी बता सकता है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्कूल्स में आई शेयर दिस गेम विद मतलब बहुत सारे टीचर्स के साथ, स्पेशली प्रिंसिपल के साथ, कि हम स्कूल में क्लास में क्या करते हैं, जब कोई गड़बड़ करता है बच्चा तो उसे सब ठीक करते हैं, कनेक्ट तो करते ही नहीं, करेक्ट करने में सब करते हैं, करेक्शन कर लो। और तो वो बहुत मतलब ये छोटा सा गेम के थ्रू मतलब एग्जांपल एक ले सकते हैं। Oh, that's nice. Yeah, it's a good game to play in schools and stuff. I hope that happens. है ना? Yes. तो tell me, अभी हमारे बहुत सारे like even in Indian culture, I think we have a lot of traditional games.
like not just when we were kids but like when our parents were kids we had a lot of games. तभी वो board game खेलने का भी थोड़ा सा ये था ना कि शाम को सब मिलके board games खेल रहे या किसी किस्म का game खेल रहे. Do you pick up any of these traditional ones during your game-a-thons or try and तो give your pupils? I never use any मतलब traditional type का कोई भी game, क्योंकि Okay. ज्यादातर जो भी गेम्स हैं उन सब में कंपटीशन था, या तो या विनिंग लूज वाला था या टीम्स में खेल रहे हैं, उस तरीके की चीज थी. सो इन गेमाथन आई यूजुअली लाइक मेक विल प्ले गेम जिसमें कोई विनिंग लूज नहीं है, कोई आउट होना ही नहीं है, कोई टीम्स भी नहीं है. तो देयर इज नो टीम, वी ऑल आर लाइक वन. जब हम सब साथ आ रहे हैं तो वी ऑल आर वन. तो वो उस स्पिरिट से खेलते हैं. तो जब टीम नहीं है तो सेपरेशन खत्म हो गया, और जीतना हारना नहीं है तो जजमेंट्स ब्रेक हो गए कि कोई फास्ट नहीं है, कोई स्लो नहीं है, कोई स्मार्ट नहीं है. तो जैसा है वैसा एक्सेप्टेड है. और लूज आउट होना है नहीं, तो सबको वो फियर भी खत्म हो जाता है कि अच्छा चलो आउट जैसे हैं हम वैसे ठीक है, जहां भी हैं हम जिस स्पेस में. तो वो स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है. और आई थिंक उसी ने मेरे को भी मोटिवेशन दिया इन गेम्स को खिलाने का, क्योंकि जब लोग साथ में आके खेलते हैं ना, जब वो मतलब मैंने देखा कि जैसे मुझे शायद आउट होना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत वेट करना पड़ता है, बोरिंग हो जाता है, या फिर बहुत स्ट्रेस रहता है, जीतना है गेम को टाइप. और मैंने देखा कि जब ये बहुत सारे लोग, अगर आप इवन इफ यू टॉक अबाउट कि यार चलो गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खेलेंगे एक्चुअल में, क्योंकि उनको उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज या उनके बहुत सारे जजमेंट्स हैं गेम को लेकर भी, फास्ट होना, स्लो होना. जो बहुत एंथु होते हैं, बहुत एक्टिव, वो तो फिर भी खेल लेते हैं. अब देखना कभी और चाहे कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग्स हो, ये हो, कुछ लोग होंगे जो बहुत एक्टिवली करेंगे, बट कुछ लोग हैं जो गेम्स में जाएंगे क्योंकि उनको यूं जजमेंट का शायद फियर रहता है, या बहुत सारी चीजें रहती है. तो यस, हाँ, तो इसलिए मैंने मेनली तो ट्रेडिशनल गेम्स वगैरह इसलिए मैं नहीं ले पाया. कुछ सिंपल गेम थे, जैसे कि जो कुछ लोगों ने से मान लो एक वो म्यूजिकल चेयर गेम है, अगर आपने सुना होगा, खेला होगा. जैसे तो कुछ कोशिश किया कि कंपटीशन को रिमूव कर दिया जाए. सो इफ यू रिमूव द कंपटीशन वाला पार्ट, तो गेम बिकम मोर फन. तो मैंने ये भी एक एक्सप्लोर करके देखा. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे म्यूजिकल चेयर को लाइक व्हाट वी डिड कि तो नॉर्मली जैसे हम खेलते हैं वैसे तो खेला ही है सबने कि भाई ईच टाइम म्यूजिक प्ले, लोग सर्कल में घूमते हैं, एंड देन आपको चेयर पे बैठना है, और अगर आप नहीं बैठ पाए तो यू आर आउट. ठीक है. देखा कि गेम में थोड़े से रूल ट्विस्ट कर दो तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन रहता है. सो व्हाट वी डिड लाइक वी सो दिस टाइम लाइक चेयर्स विल गो, मतलब चेयर्स तो जाएंगी हर राउंड के बाद, बट एवरीवन हैज टू सिट. सबको बैठना है. सो नाउ यू एक्सप्लोर कि हाउ यू वांट टू सिट. तो उसमें देखा कि इतने सारे एक्सप्लोरेशन गए, कोई सीधा नीचे ही बैठ गया. ये सोचा कि चलो व्हाट वी कैन डू शेयरिंग, मतलब शेयरिंग स्टार्ट हो गया कि चलो साथ में बैठ. उसने कहा तू मेरे ऊपर ही बैठ जा, आजा. तो वो स्पेस बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसमें लोग ज्यादा मस्ती करने लग गए कि हर वक्त हो रहा है. एंड देन थोड़ी सी देर बाद वी रियलाइज कि सब लोग ना उन राउंड एंड राउंड चक्कर में थोड़ा घूमते रहते हैं, मतलब क्योंकि वो म्यूजिकल टोन सेटअप ही ऐसा है. तो मैं लाइक व्हाट वी फाउंड कि हमने सिस्टम में से आउट का सिस्टम भी हटा दिया है. स्टिल पीपल आर इन लूप कि भाई सर्कल में ही घूमना है. लाइक यू कैन डांस, म्यूजिक चल रहा है, अब आउट होने का डर नहीं है. नॉर्मली सोसाइटी में भी ऐसा ही हो रहा है ना, अगर आप कुछ चीजें हटा भी दोगे ना, बट लोग इतने ट्यून हो चुके हैं सिस्टम में, वो उसी में ही घूमते रहते हैं. तो वो चीज मैंने देखा इन गेम्स में. मतलब मेरे रिफ्लेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहता है ग्रुप के साथ में कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब लोग कैसे सेटअप हो चुके हैं, कैसी है. तो और देखा इट बिकम मोर फन कि जब सब लोग ज्यादा शेयरिंग करते हैं, जब स्पेस ज्यादा सेफ हो जाता है. अदरवाइज वो कॉम्पिटिटिव वाले स्पिरिट में बहुत ज्यादा वो रहता है, अग्रेशन भी थोड़ा ज्यादा है कि बस मुझे जीतना है, विनिंग है. आई नो वो भी इंटरेस्टिंग है, मतलब विनिंग वाले को फीलिंग अच्छा आता है शायद, बट आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि जो लोग शायद हार जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, या जो स्टार्टिंग में आउट हो जाते हैं. मान लो अगर 1 घंटे का गेम है, अगर उसमें कोई स्टार्टिंग के 5 मिनट में आउट हो गया तो 655 इज लाइक वेस्ट. That's so true. But what about those kids जो competition पे बड़ा thrive करते हैं? You got a lot of kids who actually play for the thrill of winning, like cricket also. So what about those kids? हाँ, तो स्पेशली जैसे स्पोर्ट्स के अंदर देखें तो स्पोर्ट्स में लाइक वी हैव टीम्स और जीतना हारना रहता है. एंड आई आल्सो फील ये चैलेंज कभी, जैसे मैं जब व्हेन स्पेशली आई वर्क विद, मतलब मैं यूथ के साथ या बच्चों के साथ स्पेशली जब आता हूँ ना, टीनेजर्स के साथ, दे वांट टू विन, मतलब कोई गेम होता है तो स्टार्टिंग में लाइक एक्चुअल में वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं. मतलब काफी रिस्पॉन्स नहीं, मतलब उनका रिस्पॉन्स ये रहता है नहीं यार जब जीतेंगे नहीं तो मजा क्या आएगा, तो मजा तो आएगा नहीं.
बट देन आई से लाइक यू एक्सपीरियंस करो और फिर देखते हैं। तो एक्सपीरियंस के बाद उनको मजा तो आता है बिकॉज दे फील सेफ और मस्ती वाला और दोस्ती ज्यादा हो रही है, कनेक्शन ज्यादा बन रहे हैं। और लाइक वी टॉक अबाउट हेल्दी कंपटीशन कि भाई हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। सो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई आल्सो प्ले अ स्पोर्ट्स नेम अल्टीमेट फ्रिस्बी। तो इट्स अमेरिकन स्पोर्ट के साथ खेलते हैं। तो इन दैट वी आल्सो हैव लाइक दिस विनिंग लूजिंग वाला स्पिरिट है, बट उसकी जो प्रोसेस है ना उसको खेलने का, तो हमारी सोसाइटी में प्रोसेस अभी ना वैसा नहीं है कि मतलब हम बात तो हेल्दी कंपटीशन की करते हैं बट एक्चुअल में प्रोसेस उसको करते ही नहीं है कि हेल्दी कंपटीशन होता क्या है। क्योंकि हमारे को विनिंग इतना ज्यादा कर रखा है, विनिंग जीतना जीतना जीतना, कि हम उसमें अग्रेशन में भी चले जाते हैं। दूसरे वाले मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स में तो शायद रिस्पेक्ट होगा बट हम कर ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही रहता है इसको हराना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है और हमें बस जीतना है। तो वो मतलब मैं हेल्दी कंपटीशन के फेवर में हूँ बट मुझे अभी प्रैक्टिस होता हुआ बहुत कम दिखता है वो। तो स्पोर्ट्स विच वी प्ले तो उसके अंदर हम रेगुलरली इन सब चीजों पे काफी काम करते हैं कि यार कैसे जब हम खेल रहे हैं तो सामने वाली टीम हमारे साथ खेल रहे हैं इसीलिए हम शायद खेल पा रहे हैं, तो कैसे उनको एज ए प्लेयर अच्छे से रिस्पेक्ट करना, और इवन हम 10-0 से शायद जीत जाएं बट कैसे वो फेयर प्ले हो और वो रिस्पेक्टफुल फेयर प्ले को हम काफी एनकरेज करते हैं उसके अंदर। तो कैसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको रिजोल्व कैसे करना है, एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड कैसे करना है, तो वो सारी चीजें अभी नॉर्मली स्पोर्ट्स और कोचिंग में है नहीं। मतलब यू अंपायर या थर्ड पर्सन टू टेल यू हाउ टू डू दिस 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 दिस। तो जो हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, सो उसमें देयर इज नो रेफरी, नो अंपायर, सो वी रिजॉल्व एवरीथिंग लाइक। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई आई चोजन दैट स्पोर्ट्स खेलने के लिए। उससे पहले मेरे स्पोर्ट्स खेलने का काफी मन था बट मैं और कोई खेल नहीं पाया क्योंकि हर जगह पे यही बोलते थे पहले अच्छे से सीख के आओ। तो ये एक स्पोर्ट है, लोगों ने बोला आ जाओ हमारे साथ खेलते हैं और हम सीखते हैं एक दूसरे के साथ में। तो देन आई स्टार्ट लाइक प्लेइंग एंड देन कोचिंग आल्सो। तो यस। तो आप क्या बचपन से ही were you into games, like even as a kid do you remember like playing a lot and getting people to play? So मतलब I think 8 if I talk about like till 8th 9th तक जो होता है ना नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वाले हमारे, वहां तक तो यू आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट, खेलो जो भी खेलना है। और क्रिकेट वाज लाइक ट्रेडिशनल गेम। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट को तो नेशनल गेम ही हो जाना चाहिए, इतना खेलते हैं लोग। तो आई वाज इनटू दैट, तो उसमें बड़ा मजा आता था। बट 9th के बाद में मतलब मैं सोच ही नहीं पाया कि मतलब हम खेल पाए कोई गेम, क्योंकि मोस्टली ट्यूशंस और क्लासेस कोचिंग इन सब में ट्रैप में फंस गए थे 10th 11th 12th वगैरह। कॉलेज में आने के बाद में आई वांटेड टू प्ले, बट कॉलेज में मुझे खेलने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आई वाज वेरी स्किनी, मतलब बहुत ही पतला सा। और आई वांटेड टू प्ले वॉलीबॉल, आई वांटेड टू प्ले मतलब कुछ और भी गेम, बट आई कुडंट गो बिकॉज मैंने कभी वो गेम पहले से खेले नहीं थे। और कॉलेज में लाइक वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो लोग ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं। तो जो टीम्स में रहते हैं वो अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, उन्हीं को ग्राउंड अलॉट होता है, उन्हीं को खेलने का मौका दिया जाता है। एंड तो उसमें कभी आने ही नहीं दिया आगे किसी ने खेलने के लिए। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब मुझे इतना खेलने का मन था तो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद गर्ल्स टीम हमारे कॉलेज की। कहीं तो मैं खेलूं। तो ऐसा कोई वैसे नहीं था, बट आई थिंक आई वांटेड टू प्ले बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट पीपल। खेलते वक्त लाइक यू कनेक्ट मोर, और बिकॉज यू आर इनटू योर टीम में और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो कॉलेज में इस तरीके से रहा। तो ये सब मतलब मैं कॉलेज और स्कूलिंग में मतलब मैं बहुत खेल नहीं पाया। आई वांटेड टू प्ले बट ये शायद आई थिंक वो जजमेंट के चक्कर में अच्छा नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप प्लेयर आप अच्छा खेलते हो तभी आप टीम में आते हो। तो इसलिए मतलब नहीं खेल पाया स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में। Oh, this is interesting. जब आप ये कह रहे हो ना, like a lot of stuff that you said, one that kids don't get to play, like say even in like see when I look back to my childhood also, I think about वो एक चीज जिसमें मैं अच्छी थी, like say I was good at giving speeches, तो मैं बार उसी में जाती थी। And we had a select group of girls who were good at dancing, तो सिर्फ वो लोग हर साल उसमें जाते थे। And you never got to try it. Like कभी मन करता था कि हाँ हम भी ट्राई करें, but then you would have those good ones who would get selected or annual day के competition में वो चले जाते थे। So yeah, when I think about that, I feel competitive versus collaborative makes sense कि you know even in school whether this thought process, like a lot of the games we've played in school are all competitive games other than maybe the PT का जो drill कराते हैं उसको छोड़ के। हाँ, and that also then eventually becomes
एनुअल का एक ड्रिल होता है जिसमें योर स्कूल गोस एंड रिप्रेजेंट्स इन सम प्लेस व्हिच अगेन बिकम्स अ कॉम्पिटिटिव गेम. So yeah, I can't think of any collaborative game that we have played in school where we were not getting out or were not chosen above the others for being better than, हाँ. and that's true और for like, और इवन आई थिंक इंटरेस्टिंग ये कि मतलब मैंने भी रिफ्लेक्ट नहीं किया पूजा एक्चुअल में. थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट. मतलब कि मैं कोई गेम ऐसा सोच ही नहीं सकता जो मैंने लाइव से, मतलब अगर ये गेमाथॉन से पहले या इनसे पहले अगर मैंने कोई ऐसा गेम खेला हो जिसमें कोई आउट नहीं हो रहा. एक्चुअल में सभी गेम्स में कोई ना कोई आउट होता है, कोई ना कोई जीतता है. तो कोलैबोरेशन का स्पेस नहीं है. बेचारे स्कूल वाले तो मुझे और मतलब मैं पुअर फील करता हूँ. उनको बेचारे जब ये इन स्पेस में आते हैं ना कि हमें थोड़ा नहीं हम ट्राई करते हैं, सब लोग मिलके खेले बस, तो वो लाइक दे कम ऑन वो सांत्वना वाला टाइप का गेम कि भाई सबको खिला लो यार थोड़ा सा. मतलब अंदर से हाँ बेचारे ट्राई कर रहे हैं. मतलब उनके पास गेम्स ही नहीं है जिसमें वो सबको कोलैबोरेटिवली सबको ला सके साथ में. क्योंकि आउट होना, जीतना, हारना है. हाँ एग्जैक्टली. सो देन यू जस्ट डू समथिंग लाइक रेस करो और फिर सबको ट्रॉफी दे दो. सो एक तो वो कॉम्पिटिटिव गेम है एंड देन किड्स आर लाइक यार हम जीते कि नहीं जीते, सबको ट्रॉफी मिल गया. बट या आई थिंक अगर ऐसे टाइप की गेम्स में भी बचपन में भी हो तो पीपल कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स विदाउट गेटिंग इनटू यार नहीं मैं ट्राई करूंगा तो आउट हो जाऊंगा, वैसे भी सेलेक्ट नहीं होऊंगा टीम में कभी, सो व्हाई बॉदर. So yeah, that's a good one. So आपके पिटारा में पहले तो आई एम श्योर सारे ऑफलाइन गेम्स थे. अभी आपके पिटारा में पोस्ट और ड्यूरिंग द लॉकडाउन डू यू नाउ हैव लाइक अ होल बंच ऑफ ऑनलाइन गेम्स फॉर किड्स एंड? तो यस, मतलब तो पहले मतलब अगर ऑफलाइन में बात करो तो आई हैव गुड पिटारा. मतलब आई कैन मे बी प्ले लाइक 2-3 दिन के लिए नॉन स्टॉप गेम्स खेल सकते हैं, इतने गेम्स हैं 2-3-4 दिन के लिए. सो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अब गेमाथॉन रिट्रीट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हम सिर्फ आ रहे हैं और 3 दिन रह के और सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं. सो ये जब पेंडेमिक आया तो स्टार्टिंग में तो आई वाज वेटिंग कि यार चलो कभी तो ये खत्म हो जाएगा. बट आफ्टर लाइक 10 days 15 days मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा, तो आई नीड टू डू समथिंग कि भाई कुछ तो. और अभी नीड भी ऐसा लग रहा था, लोग चाह रहे थे कि कुछ करें, साथ में आए, कैसे आए साथ में, क्या करें. देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार कौन से गेम ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है और ऑनलाइन खेल सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करें. तो कुछ गेम ऐसे, मतलब ज्यादा तो नहीं, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. तो व्हाट आई डिड, अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन रहा था ये. तो हमारे कुछ हम फ्रेंड्स लोग ना दमशराज बहुत खेलते थे दमशराज. और फिजिकली तो हमने खेल खेल के उसको मतलब अच्छे से निचोड़ लिया था. उसमें अलग अलग तरीके के हम इनोवेशंस लेके आ गए थे, कभी गानों के साथ, कभी मूवीज के साथ, कभी डायलॉग के साथ दमशराज. तो जब ये लॉकडाउन वाला आया तो वी हैड व्हाट्सएप ग्रुप. तो उसमें हम क्या करते थे ऐसे, तो मेरा एक दोस्त है अभिषेक, सो ही स्टार्टेड दिस. तो वो ड्रॉ करता था कुछ इमेजेस और कहता था मूवी गैस करो मैंने जो ड्रॉ किया है. मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. और हमने साथ में किया. देन वी आल्सो स्टार्टेड इनिशिएटिंग, भाई हम एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं और मूवीज, और फिर लोग गैस कर रहे हैं रैंडम सा, कोई लॉजिक लगा के फालतू सा टाइप. और बहुत फनी सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा. तो जब तो ये सोचा मैंने कहा यार ये लोग हम आपस में खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, तो व्हाई नॉट कि इसको हम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ. तो आई पुट इट दिस ऑन फेसबुक कि भाई पिक्टोरियल दमशराज, और उस फोटो को वहां डाल दिया और नाउ कमेंट्स कि चलो मूवी गेस करते हैं. एंड आई फाउंड कि 500 कमेंट, 500 कमेंट्स इन इन आवर, 1 घंटे में. लोग इतना खेलने में इंटरेस्टिंग. एंड देन इट बिकम लाइक अ जॉब आल्सो कि भाई हर रोज 3-4 मूवीज नई इंटरेस्टिंग आई यूज्ड टू क्रिएट एंड उस पे डाल रहा था. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मतलब सिंपल सा गेम था बट कितना मजे से खेला लोगों ने ऑनलाइन. तो एक ये एक्सप्लोर हुआ और हमने नाम दिया पिक्टोरियल दमशराज. फिर कुछ गेम ऐसे थे जो हमने कहा यार अभी फिजिकली मिलके और वो कैसे करें कि एक दूसरे से मिले और मिलकर हम कैसे खेल सकेंगे. फिजिकली हम मिल नहीं पा रहे तो ऑनलाइन जूम पे या समथिंग. तो कुछ गेम को मॉडिफाई कर पाए जिसके अंदर हम थोड़ा खेल पाए. और फिर अब एक ये लिमिटेशंस ये आ गई थी कि फिजिकली अब बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि एक हैंड होल्ड नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं. और बहुत सारे लोग भी एक साथ आके नहीं खेल पा रहे हैं कि जैसे पहले तो ग्रुप में हम 100 लोग भी खेल लेते थे, 50 लोग, 50 लोग, 40 लोग, 30 लोग टाइप. इतने सारे वॉइसेस, सबके लिए स्पेस होल्ड करना थोड़ा मुश्किल था. तो बट देन वी फाउंड कि ये कुछ माइंड गेम्स बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर हो गए कि जो हम थोड़ा सा, क्योंकि फिजिकली आप कुछ कर नहीं पा रहे तो यही पोर्शन है जो थोड़ा सा एक्टिव रह सकता है. एंड देन वी फाउंड कि वाले, कुछ माइंड वाले, कुछ क्लूज वाले, तो इस तरीके के गेम बहुत सारे थे जो एक्सप्लोर किए हमने. तो कुछ ऐसे
बाद में पता चला कि ये तो ऑलरेडी कार्ड गेम भी है जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उस तरह के गेम्स जब बन रहे थे ये सारे, तो एक छोटा सा ग्रुप हो गया जिसमें हम रेगुलर खेलने लगे। तो यस, ऑनलाइन में भी अभी मतलब कुछ पिटारा है जिसमें लोग गेम्स खेल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा माइंड वाला स्पेस ज्यादा है, मतलब उसमें फिजिकल वाला थोड़ा कम है, बट वो एक्सप्लोर किया। लाइक वी स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक के साथ में कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन, सब लोग साथ में आके के साथ कुछ कर रहे हैं। कुछ चीजें हमने ऐसे भी देखी कि जिस तरह हम एक्शंस के साथ में कि मैं हम बोल रहे हैं उसमें कर रहे हैं, तो एक्सप्लोरेशन मतलब कि इतना था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं साथ में, मतलब बट थोड़ी लिमिटेशंस तो है। ओके, this is interesting. You know, Manish, आप जो कह रहे थे ना, it just reminds me of, okay, something that we keep talking about in holistic edu is about the whole child. एक चीज ये कि the whole child is not just the child's marks, but also, you know, his how much he can interact, social interactions कितना कर पा रहा है बच्चा, वो अपना emotions कितना express कर पा रहा है, even physical, how much is he physically developing, how much is his cognitive skills developing. Also, like if you see some children are more comfortable with physical expression, like, you know, kinesthetic children who want to run around. Some children are better at logical puzzles, like the ones you're talking about. Or like you were now talking about music. Some children are much better at, you know, games which involve music. कि एक tune को identify करना, एक गाने को identify करना. So like there is this whole theory about children having different kind of intelligences. And I also see your games fitting into that. Like if this could also be taken to a classroom, and if teachers start using games as a method to teach children, it could also be very interesting, because then ek to game bola hi, the kids are like, हाँ chalo chalo. Like when you tell ki books nikalo, sabki chehre, like, you know, everyone's face falls down. But the minute you start the class with chalo bacche game khelte hai, everyone is like, then they don't care what you're teaching, but they'll just do everything. So that's something, yeah, I think would be a good way. Like, I think I've tried that in a couple of classrooms. Like, whenever I get stuck in a game, like once we were doing, say, dictation. कि English जब भी सिखाते, we underline all the difficult words and then tell the children अब पढ़ के आना, कल dictation होगा. And kids obviously forget to study and come. अगले दिन आते हैं, बहुत बड़ा अंडा लेके आते हैं, and then we're like, okay, दोबारा पढ़ के आना, and फिर से अंडा लेके आते हैं. We're like, okay, what can we do now? So then we started playing this hangman game. जो मैं आपको कह रही थी, you put those dashes, and suddenly everyone is like, you know, climbing over their desks and benches. Miss A, no, Miss वहाँ पे I आएगा, no. And it was also collaborative in a way, because we made a team, and you know, like you discuss as a team and tell what is the right alphabet. So there was a lot of helping going on. So yeah, I think a lot of stuff could actually be done just through games. A lot of और बहुत इंटरेस्टिंग यार, अभी मैं रिसेंटली लाइक वी वेंट फॉर अ ट्रिप, कुछ फैमिलीज हम साथ में घूमने गए थे, तो कार के अंदर, सो वी वर लाइक हम 4 एडल्ट्स होंगे और एक किड था, कुछ आई थिंक 7 year old. तो हमने ऐसे कुछ गेम, वहाँ पे हम ट्रिप पे गए, तो वहाँ पे जाके भी हमने शाम को इवनिंग में गेम खेल लिए, और दैट गेम वाज अराउंड, उसमें भी इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग लेटर फाइंड आउट करना है, पूरी स्पेलिंग को करना है, और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से था. तो वो गेम हम खेल रहे हैं, उसको वो इतना मजा आ गया, हम 6-7 hours की जर्नी कार के अंदर, मतलब हम उसी गेम को खेलते हुए आ रहे हैं. मतलब आई वाज लाइक यार, इसको कितना मजा आ गया. और उसमें मतलब मैं खुद का बताऊंगा, सो मैं जैसे इंग्लिश के अंदर बहुत, मैं मतलब आई एम एबल टू कम्युनिकेट, बट मेरे पास बहुत सारे वोकैब नहीं है, जो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, पता नहीं लोग कैसे कैसे बोल लेते हैं, शनानिगन्स टाइप या ऐसा कुछ कुछ. तो मैंने इतने सारे वर्ड पहली बार सुने, मैंने कहा ओह शिट, ये वर्ड्स भी मतलब मुझे नहीं पता, बट वो खेलते खेलते यू आर गेटिंग टू नो, और हमें पता भी नहीं कि हम चीजें सीख रहे हैं. सबसे मजेदार तो वो है कि मतलब आप 1 घंटा खेला और कितने सारी नई स्पेलिंग्स देख ली, कितने सारे नए वर्ड देख लिए, और कितने सारे अदर स्पेलिंग भी देख ली कि जो आपको चेक भी हो गया कि अच्छा ये स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है. तो मैंने कहा यार ये अपने आप ही हो रहा है, मतलब बिना बोले. तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो आप बोल रहे हो बच्चों के लिए कि भाई उन्हें पता ही नहीं, वो सीख रहे हैं और खेल रहे हैं. Exactly. Like we had also done that. We had done Scrabble. There's also Scrabble, जिसमें वो बच्चे या you know alphabets के साथ, and we started it as a game for one. I think it was for class 5. कि class 5 के बच्चे थोड़े level तक आ गए reading level में, तो हम उनके साथ खेलेंगे. But when you're playing it with them, like 3rd standard के बच्चे आ जाते कि ये क्या है, and you know can I also play? फिर like ठीक है, तुम cat mat बना लो. And then the class 2 comes, and then the class 3 is like, तुम्हें नहीं आता है, तुम नहीं खेल सकते हो. He's like, नहीं, मैं कुछ तो बनाऊंगा, like rat बनाऊंगा, mat बनाऊंगा, और मैं भी खेलूंगा. And kids
want to, and they'll even go and find out big words, you know, किसी टीचर के पास जाके कि आज से मुझे बड़ा वर्ड बताओ कि, you know, I also want to play. So kids are like that. हाँ. इसमें आई थिंक इंटरेस्टिंग एक ये है, जैसे आप जब शेयर कर रहे हो ना, तो मतलब मैं लोगों के साथ ये भी एक शेयर करना चाह रहा था हमेशा. तो गेम्स तो ना बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे लोग गेम को यूज ही इसलिए करते हैं कि सिखाना है कुछ. तो मुझे लगता है कि जो सीखना वाला स्पेस है ना, जो लर्निंग वाला है, वो तो नेचुरल है, आपको वो करना ही नहीं पड़ता. आपको स्पिरिट रखना है खिलाने वाला. जब आप गेम्स खिला रहे हो, अगर आप उस पर जाओगे, मैं इसको सिखा देता हूँ कुछ, और फिर गेम खिलाओगे, वो गेम स्पॉइल हो जाएगा. तो बेटर, क्योंकि ना किसी को सीखना मतलब किसी को आप बोलोगे मैं तेरे को सिखाता हूँ, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा आदमी उसी टाइम. मतलब एग्जांपल हमारे ले ले, मैं आपको अगर अभी मैं बात करता कि यार पूजा मैं तुम्हें ना कुछ सिखाऊंगा इस सेशन में, तो आधा कनेक्शन तो वहीं खत्म हो जाएगा. बट हाँ, हम साथ में खेलते हैं तो लर्निंग अपने आप निकलती रहती है. लर्निंग तो नेचुरल प्रोसेस है. तो बच्चों के लिए, बच्चे तो इस सेंस में बहुत जल्दी सेंस करते हैं. मतलब वो तो एनर्जी से, उनको पता चलता है ये सिखाने आए हैं और ये खेलने आया है. तो अगर आप खेलने आए हो तो लाइक दे वुड कनेक्ट, वो मजे से खेलेंगे और सीखते भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. बट आप सिखाने के स्पेस में जाओगे तो काफी डिस्कनेक्ट पहले से ही हो जाएगा. तो मतलब मैं भी करता हूँ, मुझे कभी-कभी मैंने भी देखा कि मैं सिखाने वाले माइंडसेट से थोड़ा सा चला गया तो बहुत ही अलग, और तो उसमें लर्निंग कम है. और जब मैं देख रहा हूँ कि खेलने जा रहा हूँ तो उसमें ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा लर्निंग है, जो मैं सोचता भी नहीं हूँ. क्योंकि मैं सिखाने के तरीके से तो जाता हूँ तो मैं लिमिट होके जाता हूँ ना कि इनको ऐसे ही सिखाऊंगा, बट वो अलग तरीके से स्पेस में आते हैं, वो और भी अन्य तरीके निकाल के लेके आते हैं, स्पेशली बच्चे तो. हाँ, that's true. That's good. Yeah. So something else I was talking about. Yeah. तो कैसे like also you've taken a path that is very very different, right? Like say आपने engineering की हुई है, so as it is society will have certain expectations कि engineering किया है तो उसी line पे कुछ करेगा. And then you're doing something which very few people are doing, organizing games. So how is that part of your journey been like? Was it difficult? Was it easy? तो मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहा, यस, क्योंकि मतलब वो ये ना सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. जैसे ही कॉलेज, लाइक यू फिनिश योर कॉलेज, तो यू नीड टू गो फॉर जॉब. तो अब वो कैसे बोलोगे घर पे कि भाई जॉब के लिए नहीं जाना, यू वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि एक्सप्लोर तो वर्ड है ही नहीं अभी सोसाइटी में कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तो वो एक चैलेंजिंग था. तो एक तो चैलेंज था कि सोसाइटी का तो था ही था, उससे पहले था कि भाई फैमिली के साथ में क्या बात करनी है, क्योंकि फैमिली दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स. और वो भी एक था. उससे ज्यादा बैटल मुझे ये भी लगा कि खुद के साथ में भी बड़ा बैटल चलता रहता है कि व्हाट यू वांट टू डू. मतलब कुछ सोचा नहीं है, मतलब थोड़ा लग तो रहा है कि भाई ये नहीं करना है, बट क्या करना है ये तो क्लैरिटी नहीं थी मुझे. तो स्टार्टिंग में जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया, तो वो ये 2-3 लेवल पे मतलब थोड़ा बैटल चलता रहता है, खुद के साथ, फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ. रिलेटिव्स भी बीच में आ जाते हैं उसमें, यस. तो वो चैलेंजिंग रहा स्टार्टिंग के अंदर, बट आई फाउंड लाइक मेरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया. मतलब थोड़ा चैलेंजिंग काफी उनके लिए रहा होगा, और आई कुड फील, मतलब वो उनके जब सवाल आते थे तो मुझे पता चलता था कि बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए. और तो हमारे आपस में तो पहले तो स्टार्टिंग में डिबेट ही चल रहे थे काफी टाइम, एंड देन तो मैंने कहा ये तो पता नहीं कब तक चलेगा. तो वी टॉक्ड, तो हमने बात भी किया. तो बात करने में ये नहीं पता कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया या सरेंडर किया था स्टार्टिंग में कि यार ये तो नहीं सकता. तो देन आई आस्क्ड, मैंने एक चीज ये बोली, मैंने कहा यार मेरे को लोग जब सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट आप मतलब आपने इतना बड़ा किया, एजुकेशन दिया, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो. तो मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा कि आप मुझे कुछ टाइम दो और जस्ट सपोर्ट करो. और ज्यादा क्या होगा कि वो 3 इडियट टाइप फिल्म मूवी भी देख ली थी मैंने थोड़े दिन पहले, कि ज्यादा क्या होगा कि मैं कुछ खराब होगा, छोटा होगा, जो भी होगा, बट आई विल बी हैप्पी विद दैट. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तेरे को जो करना है कर ले. फिर 2 दिन बाद वापस से वो सेम चीज स्टार्ट. मैंने कहा यार ये नहीं छोड़ रही इतना आसानी से. तो ये चलता रहा, बट इट टुक टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लिया. बट व्हाट आई डिड, मैंने उनके साथ सब कुछ शेयर किया, उनके साथ उनको बताया मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रख रहा हूँ. तो दे वर सीइंग एंड दे वर फीलिंग हैप्पी आल्सो कि जो भी मैं कर रहा हूँ. बट वो अनसर्टेनिटी और सिक्योरिटी वाला उनको काफी डर था. और तो वो कुछ 2-3-4 साल जब मैं ये करता रहा, जब उन्होंने देखा कि, और फिर मैंने उन्हें बोला कि आप आओ, जो भी मैं काम करता हूँ, यू कम, यू एक्सपीरियंस. तो जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो थोड़ा थोड़ा उनका वो ट्रस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ. जिस तरीके के लोगों से मिलना देखा उन्होंने, मैं जिन तरीके के लोगों के साथ में रहता हूँ, तो उससे और उनको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम फील हुआ. और फिर तब वो उन्होंने थोड़ा जब 1-2 बार और एक्सपीरियंस किया तो थोड़ा सा उनका विश्वास बढ़ा कि चलो ये कम से कम ये कुछ डायरेक्शन में जा तो रहा है. एंड देन दे स्टार्ट सपोर्टिंग मोर. तो उन्होंने और सपोर्ट किया.
दे हैड कंसर्न अबाउट फाइनेंस और ये छोटी मोटी 2 चीजें जो रहती है फाइनेंस वाला और क्लैरिटी वाला। तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए शायद उनको ज्यादा फियर था, बट देन दे फाउंड कि यार मुझे भी थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है मेरे विजन में, देन उनका सपोर्ट थोड़ा और बढ़ गया। एंड देन लाइक वी स्टार्ट वर्किंग एज टीम, मतलब अभी भी जैसे वो अब सुनते हैं, बात करते हैं, हम शेयर करते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है, कहाँ क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मैंने देखा कि हम साथ में ग्रो करने लग गए। पहले मैं इंडिविजुअल ग्रो कर रहा था कि, तो इसीलिए वो गैप भी बढ़ रहा था कि ठीक है तो गैप बढ़ रहा था कि वो गैप कम कर, मैंने कहा उस गैप को पहले कम करना चाहिए। तो फिर अब हम साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब तो वो इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। तो यस, एंड देन इट बिकेम लाइक मोर फन आल्सो, मतलब ताकि मैं उनके साथ भी बात कर सकता हूँ, समझ सकते हैं वो। और मैंने इंटरेस्टिंग देखा जब हम ऑनलाइन, अभी ये लॉकडाउन में जब मैं घर पे था, तो ऑनलाइन में अगर गेम खेल रहा हूँ कंप्यूटर पे, आई फाउंड कि मेरे पापा उधर से जवाब दे रहे होते थे कुछ चीजों के, कि दे आर आल्सो इनटू गेम। कहते अरे यही नहीं आ रहा, ये सब आ रहे। मैंने कहा वाह, ये भी खेल रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। यस। Wow, that's nice. Okay, I mean, you had like a really unique journey, and I really wish that continues. And I wish there are more free men like you. You know, I hope आपसे ये सुनने के बाद a lot of other people who are thinking कि मैं ये journey पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, I hope they listen to this and see that, you know, yeah. And also the spirit of collaborative games. I do hope people, you know, think about it more and it's more spoken about. Maybe in the next 5-6 years, hopefully we see that change. That, you know, maybe even schools start having more collaborative games and there are more games even in the daily curriculum. The having a few more games in the daily curriculum is something that I envision, that, you know, the classrooms not be just about textbooks but also about stories and games and art, and if that can be used to, you know, connect. Wonderful. Thank you so much, Manish. This has been wonderful. Anything that you want to share before we close the session? मतलब ऐसे नोट स्पेसिफिक अभी ऐसा सोच में नहीं आ रहा। अभी जो मैं अभी भी सोच रहा था कि मतलब कि जैसे, तो मेरे लिए जैसे जो सबसे ज्यादा लर्निंग रही ना शायद इन गेम्स के अंदर जब मैं खेल रहा हूँ, तो मतलब वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। मतलब हम बहुत सारी चीजों में बात करते हैं कि ऐसे होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में ऐसा होना चाहिए, या कि ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, या ऐसे एक दूसरे के लिए जगह बनानी चाहिए। तो आई फाउंड कि नॉन गेम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही रही कि यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। मतलब आप एक्सपीरियंस करते हो वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग, वो सेफ स्पेस, वो एक दूसरे के लिए जो कहते हैं ना होल्डिंग स्पेस की बात करते हैं कि एक दूसरे के लिए हम स्पेस कैसे बनाए, होल्ड स्पेस कैसे करें, वो इन गेम्स में ऑटोमेटिकली होता है। और जब वो एक्सपीरियंस, क्योंकि ना क्या है कि बुक्स में बातें तो बहुत सारी हैं बट एक्सपीरियंस करने के लिए स्पेस नहीं है। तो मैंने देखा ये गेम्स के अंदर एक्सपीरियंस हो पाता है और वो मैजिकल है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स अभी पिछले कुछ, मतलब इट्स बीन 9 इयर्स जब मैं ये गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आई थिंक मैं आराम से लाइक मिलियंस ऑफ पीपल के साथ, मतलब मुझे लगता है मैं लाखों लोगों के साथ में गेम्स खेल चुका हूँ इतने सालों में। और पता नहीं एन नंबर ऑफ सेशन कर दिए होंगे जो मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। तो और कितने डाइवर्स ग्रुप के साथ काम किया है, मतलब स्लम्स के अंदर बच्चों के साथ, बस्ती में, रोड पर, कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मी में, डॉक्टर्स के साथ में, एडवोकेट्स के साथ, पुलिस वालों के साथ में, तो सबके साथ काम करके देखा और देन आई फाउंड कि सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब सबने अप्रिशिएट ही किया। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस करता है, जो हम बातें करते थे ना कि खुद को सेंटर करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे से रिश्ता बना के रखें, विश्वास वाला, प्यार वाला, वो सारी चीजें उन सबने एक्सपीरियंस करी कि जब गेम खेलने आ रहे हैं तब उनका एनर्जी कैसा है, 2 घंटे गेम खेलने के बाद में दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। तो और खुद के बीइंग में आना, मतलब सबसे मजेदार चीज, तो वो बड़ा अच्छा स्पेस रहा। तो मैंने देखा यार इन गेम्स में, स्पेशली कोलैबोरेटिव गेम्स में, यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स जो हमने सच में पढ़ी होती है तक। तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन गेम्स का, मतलब लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करें, ज्यादा खेलें इन सब गेम्स को। और तो वो एक चीज है यस व्हिच आई वांटेड टू शेयर। Wonderful. Thank you. Thanks for that, Manish. I think it's been wonderful and I want to explore this myself. I mean, collaborative games, and I'm sure I'll join one of your sessions just to get the feels of what it's like. Yeah. Sure, after this lockdown के बाद में. Definitely, definitely. Thanks a lot for that. And this is for the viewers. You can please do attend some of Manish's workshops post lockdown, during the lockdown, online or offline.
and enjoy his gameathon. And also do follow us on Holistic Edu, both on Facebook and on Insta. We will have more of such wholesome conversations, maybe with Manish also one more time, and with many other such people doing such amazing work in this field. Thank Yeah. you. Thank you, Pooja. Bye, Manish. Bye bye. Bye.